السلام علیکم، میں ہوں عریشہ پرویز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آل ان ون۔ آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ کس طریقے سے ایران اور اسرائیل دونوں جو ہے وہ ایک دوسرے پر لفظوں کے تیر برسا رہے ہیں۔ یہ سب تو ہم جانتے ہیں کہ یہ جانتے ہیں کہ موجودہ صورتحال میں جو ہے وہ ایران اور اسرائیل کے بیچ جو ہے وہ ایک جنگ سا ماحول چھڑا ہوا ہے اور جنگ کی صورتحال جو ہے وہ پیش آ رہی ہے اور اس میں جو ہے وہ کس قدر جو ہے وہ امریکہ انوالو ہو چکا ہے اور کس قدر جو ہے وہ امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کا ساتھ دے رہا ہے، کیونکہ اوبویسلی ان دونوں کے جو مقاصد ہیں اور جو ان کی ڈیولپمنٹ ہے یا ان کا جو ایک نظریہ ہے وہ یکساں ہی ہے۔ تھوڑا سا رد و بدل ہو سکتی ہے لیکن کافی حد تک جو ہے وہ ایک جیسا ہی سوچتے ہیں، جو کہ نظر آ رہا ہے کیونکہ کافی زیادہ ڈونلڈ ٹرمپ جو امریکہ کے پریزیڈنٹ ہیں ابھی، وہ بہت زیادہ اسرائیل کو جو ہے وہ سپورٹ کرتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں مبینہ طور پر۔ تو اس حوالے سے ہم بات کریں گے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اسرائیل اور ایران کی جنگ کے حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ پھر آگے جو ہے وہ ہم یہ بھی بتائیں گے کہ جو آیت اللہ خامنائی ہیں جو کہ سپریم لیڈر ہیں ایران کے، وہ اس صورتحال میں کس قدر جو ہے وہ ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اور کیا بیان دے رہے ہیں وہ اس ساری صورتحال کے پیش نظر، تو وہ کیا بیان دے رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں یو ایس پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی، جو کہ بہت زیادہ انہوں نے آڑے ہاتھوں لیا ہے ایران کو، اور جو ہے وہ جس طریقے سے وہ بیان دے رہے ہیں، وہ یہ بیان دے رہے ہیں that we know exactly where the so-called supreme leader is hiding. He is an easy target but is safe there. We are not going to take him out. اور انہوں نے بریکٹ میں kill لکھا ہے، at least not for now۔ مطلب یہ کہ ہمیں پتہ ہے کہ سپریم کمانڈر جو سو کالڈ سپریم کمانڈر، انہوں نے کہا کہ سو کالڈ سپریم کمانڈر ہے، وہ ہمیں پتہ ہے کہ کہاں ہے، اور ابھی کے لیے فی الحال کے لیے وہ جو ہے وہ محفوظ ہیں، اور ہمیں پتہ ہے، اور ہم جو ہے وہ ابھی فی الحال ان کو نہیں مار رہے یا ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر رہے، ایٹ لیسٹ ناٹ فار ناؤ۔ مطلب ابھی کی صورتحال انہوں نے بولا کہ ابھی ہم نہیں کر رہے، مطلب ہم کر سکتے ہیں لیکن کر نہیں رہے۔ But we don't want missile shot at civilians or American soldiers۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سویلینز پر جو ایران حملہ کر رہا ہے، وہ اسرائیل کی بات کر رہے ہیں، وہ نہیں کرنا چاہیے، اور امریکن سولجرز کو بھی نشانہ نہیں بنانا چاہیے، یہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں۔ اور مزید وہ کہتے ہیں کہ our patient is wearing thin. Thank you for your attention to this matter۔ مطلب انہوں نے کہا کہ ہمارا صبر جو ہے وہ اب جواب دے رہا ہے، وہ ایک طرح سے تڑی لگانے کی اور ایک طرح سے آیت اللہ خامنائی کو جو ہے جو سپریم کمانڈر ہیں ایران کے، ان کو دھمکی آمیز لہجے میں بیان دے رہے ہیں ان کے خلاف، اور چیزیں جو ہے ان کے خلاف بول رہے ہیں، اور انہوں نے ایک طریقے سے دھمکی لگا دی کہ ایسا بھی ہم کر سکتے ہیں، اور ابھی ہم فی الحال ان کی جان نہیں لے رہے، ہمیں ایگزیکٹلی پتہ ہے کہ وہ کہاں ہیں۔ تو یہ ایک جو ہے یہ ایک ایسی زبان ہے جو کہ یو ایس پریزیڈنٹ کو تو بہرحال یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اس طریقے کی زبان کا استعمال کریں، لیکن اگین ہم ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی بات کر رہے ہیں جو ماضی میں بھی جو ہے وہ اترنگی سی حرکتیں کرتے رہے ہیں، لیکن یہ اترنگی سی حرکت نہیں ہے، یہ بہت سیریس میٹر ہے، اور اس میں بھی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہے وہ اس طریقے کے بیان بازی دینے سے باز نہیں آ رہے، اور بہت ہی آئی تھنک میں سمجھتی ہوں تھوڑا سا امیچور بیہیویئر ہے، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ بالکل انہوں نے اسرائیل کا ساتھ کھلے طور پر دینا شروع کر دیا ہے، جو کہ وہ پہلے پیچھے چھپ کر اور پیچھے سے دیا کرتے تھے، اب وہ کھل کر جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں، کھل کر جو ہے وہ بیان داغ رہے۔ اور انہوں نے مزید کہا، اور بلکہ ایک پوسٹ شیئر کی سوشل میڈیا پر، انہوں نے یو ایس کے جو سفیر ہیں جو کٹر صہیونی ذہنیت رکھتے ہیں، وہ اسرائیل کی طرز کی ذہنیت رکھتے ہیں، جو کہ امریکی سفیر ہیں، ان کا جو ہے وہ ایک پوسٹ شیئر کرتے ہوئے انہوں نے
जूम मायने वाली जो है वो डबल मीनिंग वाली जो है वो पोस्ट शेयर की, जिसमें उस सहूनी नजरियात का हामिल इंसान जो कि ईरान का जो है वो बहुत बड़ा दुश्मन है, वो मुसलमानों का बहुत बड़ा दुश्मन अपने आप को तस्वुर करता है और कहता भी है, और उसके मतलब उसकी पोस्ट से भी ऐसा जाहिर है। तो वो इस तरीके की पोस्ट कर रहा होता है, और वो चीज़ जो है वो डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने शेयर की भी है, और जिसमें वो सहूनी नजरियात रखने वाला शख्स जो अमरीकी सफीर है, वो ट्रम्प को जो है कह रहे हैं कि एटॉमिक हमला करना चाहिए ईरान पर, और आप बहुत ही ग्रेट लीडर के तौर पर जाने जाएंगे, और आप एक अजीम कारनामा से अंजाम देंगे अगर आप जो है वो ईरान पर इस तरीके का एटॉमिक हमला करते हैं। तो ये जो और ये डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने मतलब शेयर भी किया हुआ है। तो ये एक बहुत ही तशवीश की बात है कि एक अमेरिका जैसा मुल्क जो कि सुपर पावर अपने आप को कहलवाता है, और जो कि जो है एक इम्पोर्टेंट हैसियत रखता है पूरी दुनिया में, उसका जो प्रेसिडेंट है वो इस तरीके की चीज़ों को प्रमोट कर रहा है और सपोर्ट कर रहा है, जो कि पहले मैं अगेन यही कहूँगी कि इसराइल को पहले पीछे पीछे सपोर्ट किया जाता था, और अब बिल्कुल खुलेआम सपोर्ट किया जा रहा है। तो ये मेरी पिछली वीडियो के आपको मैं बताती चलूँ कि जो मैंने आपको बताया था कि एक नज़रिए के तहत इसराइली लोग काम करते हैं, और इनका प्लानिंग के तहत ये काम करते हैं। ऐसा नहीं कि ये एकदम उठे और कुछ कर दें, ये बकायदा सदियों से प्लानिंग करते आते हैं, और ये ऐसे लोगों को हायर करते हैं जो आपकी सफ़ों में घुसकर आपके लिए आपकी जासूसी करें, या अपने लोग भेज बदल कर ये भेजा करते हैं। तो इस तरीके की इनकी हरकतें। तो अब आप देखेंगे डोनाल्ड ट्रम्प साहब जो है वो जो कि यूएस के प्रेसिडेंट हैं, वो बौखलाहट में जो है वो बौखला गए हैं, या क्या मसला है उनके साथ कि वो इस तरीके की बात कर रहे हैं, और बिल्कुल खुलेआम जो है वो आयतुल्ला खामनाई साहब को जो है वो धमकियां लगा रहे हैं, और बहुत ही उनका सख्त लहजा हमें देखने को मिल रहा है कि वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं और किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। तो ईरान के हवाले से जो है वो डोनाल्ड ट्रम्प ने एक और सोशल मीडिया पोस्ट में मतलब उनकी ओवरऑल मैं पोस्टर्स आपको बता रही हूँ जो इस दौरान इस सारी सूरत हाल के दौरान जो है वो उन्होंने की हैं। उस हवाले से मैं आपको बता रही हूँ कि डोनाल्ड ट्रम्प ने एक और पोस्ट की, उसमें उन्होंने कहा कि ईरान शुड हैव साइन द डील, आई टोल्ड देम टू साइन। मतलब ईरान को वो बहस मतलब ऑर्डर ही लगाना शुरू हो गए कि भाई हमने जो आपको कहा, मैंने जो आपको डील करने का कहा वो आप जो है डील कर लें, मैंने आपसे जो बोला था वो आप करें। मतलब एक उनका टोन ही अजीब है, और टोन ही बता रहा है कि वो किस तरह से ईरान को एक छोटा मुल्क समझने के बाइस जो है वो अपनी हुक्मरानी और कह सकते हैं कि ऑर्डर के सूरत में जो है वो उन पे सारी बातें कर रहे हैं, उनको ऑर्डर की सूरत में दे रहे हैं। आगे लिखते हैं व्हाट अ शेम एंड वेस्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। मतलब ये ईरान के हवाले से कह रहे हैं कि व्हाट अ शेम एंड वेस्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो डोनाल्ड ट्रम्प साहब आपको जो है वो ईरान को नहीं बल्कि किसी और को कहना चाहिए था कि व्हाट अ शेम एंड वेस्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। जिस तरीके से इजराइल जो है वो मजलूम फलस्तीनियों का खून बहा रहा है, वो मुसलमानों की नस्ल कशी करने पे तुला हुआ है, उन्हें जो है वो शेम दिलाना चाहिए था, उन्हें बताना चाहिए था कि आप इंसानी जानों का ज़िया कर रहे हैं। उन्हें शर्म दिलानी चाहिए थी, ना कि आप ईरान को जो है टारगेट करें और ईरान को ये बात कहे, क्योंकि ईरान ने पहला हमला नहीं किया, पहला हमला किया है इजराइल ने। तो इजराइल को कहा जाए कि वो उनको शर्म आनी चाहिए, और वो मुसलमानों के खून का ज़िया कर रहे हैं, वो इंसानी जानों का ज़िया कर रहे हैं, तो उनको शर्म दिलानी चाहिए, ना कि ईरान को। सिंपली स्टेटेड, उन्होंने मजीद लिखा सिंपली स्टेटेड ईरान कैन नॉट हैव अ न्यूक्लियर वेपन। मतलब ईरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन जो है उसके पास नहीं होना चाहिए। मैंने पहले भी कहा है, ये कहा है, आई सेड इट ओवर एंड ओवर अगेन।
ये भी उन्होंने इसमें लिखा कि मैं कई बार जो है मुतादिद बार अगेन मैं बोलता रहा हूँ कि न्यूक्लियर वेपन जो है ईरान के पास नहीं होना चाहिए। मतलब एक डिक्टेटर, एक वो नहीं होता कि आपके बिल्कुल ही उसमें अंडर है कोई और आप उसको डिक्टेट कर रहे हो, आप जो है उस पर चढ़ाई कर रहे हो और आप उसको बोल रहे हो कि भाई आप आपको मैंने ये कहा था तो आपने ऐसा क्यों नहीं किया, आपको मैंने ये कहा था तो आपने वैसा क्यों नहीं किया। तो वो वाली सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं। वो ऐसा लग ही नहीं रहा है कि एक यूएस का प्रेसिडेंट बात कर रहा है जो कि न्यूट्रल। आप देखें जितनी भी जंगी माहौल, किसी का भी थोड़ा सा भी सिनेरियो बन रहा होता है, जैसे कि अभी हालिया दिनों में पाकिस्तान और इंडिया का बना था, तो भी डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो मतलब पहले उन्होंने बोला कि मैं तो न्यूट्रल हूँ और ये है वो है, मैं बिल्कुल इसमें नहीं पढ़ना चाहता। उसके बाद जो है वो उन्होंने पेशकश भी कर दी कि भाई मैं तो कश्मीर का मसला भी हल करवाना चाहता हूँ और मैं मीडियोकर जो है वो बनने के लिए तैयार हूँ, और मीडियोकर रोल भी उन्होंने प्ले किया पहले। लेकिन उन्होंने बिल्कुल न्यूट्रल हो गए थे और उन्होंने बोला था कि हमारा इंडिया के साथ भी अच्छा ताल्लुक है और पाकिस्तान के साथ भी अच्छा ताल्लुक है, तो हम न्यूट्रल हैं और ये इनकी आपस की चलती रहती है और थोड़े टाइम में सही हो जाएगा। तो उस वक्त इन्होंने ऐसा कहा था, उसके बाद ये मीडियोकर बन गए थे। और अभी, लेकिन अभी आप देखें इनकी जो लैंग्वेज है वो किस तरीके की खतरनाक सी इनकी लैंग्वेज इन्होंने यूज कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प साहब ईरान का और इजराइल के मसले आने पर किस तरीके की लैंग्वेज जो है वो यूज कर रहे हैं। एवरीवन शुड इमीडिएटली इवैक्यूएट तेहरान, और उन्होंने तेहरान से निकल जाने का भी हुक्म दिया लोगों को कि तेहरान से आप लोग निकल जाइए। तो ये ओवरऑल जो है डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो हुक्म साबित करते चले जा रहे हैं और हुक्म उनका कोई मान नहीं रहा। ये है सारी सूरत हाल। और लेकिन इनका जो टोन है, वॉइस टोन है कि मतलब बिल्कुल ही आप किसी को डिक्टेट कर रहे हो। भाई आप कोई उनके कोई अन्नदाता या कोई माई बाप नहीं लगे हुए, ना ही वो आपको इतनी इम्पोर्टेंस ईरान देता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि आप जो है उनको सारी चीजें डिक्टेट करते फिरो या आप जो है वो इनको बताते फिरो। मतलब बिल्कुल ही अजीब और गरीब स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल दिमाग से पैदल वाली स्टेटमेंट जो है वो पास की जा रही है उनकी तरफ से, और बिल्कुल सोचे समझे बगैर चीजें हो रही हैं या सोचे समझे बगैर ही सब कुछ हो रहा है। और ये जो सोचा गया है ये बहुत पहले से सोचा गया है, लेकिन अभी बोंगियां मारी जा रही है क्योंकि अभी ईरान का जो है वो उनको ये था कि ये लोग रिएक्ट करेंगे, रिटेलिएट करेंगे, लेकिन इस लेवल का करेंगे उनको इस बात का अंदाजा हो गया है। और पहले शायद इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये इस लेवल का रिएक्ट करेंगे और इतना हमें टफ टाइम दे सकते हैं। जो पूरी दुनिया को हैरान किया है ईरान ने कि किस तरीके का जवाब दिया है, जो कि जिनको जवाब नहीं दिया जाता था। मतलब उनको हवा जो लोग बनाते थे, खैर मुसलमान तो नहीं उनको कुछ समझते, लेकिन जो लोग समझते थे उनके सामने भी कितनी बड़ी इंसल्ट है ना। जैसे कि अगर एक बहुत बड़ा, जैसे बहुत अमीर कबीर या बहुत ही एक ऐसा, आप वो मिसाल ले लें कि बहुत बड़ा अमीर कबीर है या उसकी एक रेपुटेशन है माशरे में, और एक छोटा सा बंदा आए और छोटा सा बच्चा आए और उसको जलील कर दे और उसको उसकी औकात याद दिला दे या उसका हशर नशर कर दे और उसका हाल बेहाल कर दे, जैसे कि इजराइल का ईरान ने किया, तो कितनी शर्मिंदगी होगी इजराइल को, कितना जो है वो अपने ही उसमें डूब के मर जाने वाला मकाम साबित हो रहा होगा। तो ये चीजें हैं। तो ये मिसाल मैं आपको समझाने के लिए मैंने आपको दी। खैर बैक टू द टॉपिक। तो आयतुल्लाह खामनाई साहब जो हैं वो ईरान के सुप्रीम लीडर, उन्होंने भी जो है अमेरिका को आड़े हाथों लिया इस हवाले से कि किस तरीके से अमेरिका कौन होता है भाई हमारी चीजों में मुदाखलत करने वाला। वो एक जो है वो खुद मुख्तार जो है मुल्क है, वो किसी की डिक्टेशंस पे नहीं चलता ईरान कि आप जो है वो डिक्टेशंस देंगे और वो मान लेंगे आपकी बात। तो उन्होंने दो टोक अंदाज में कहा कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने हमें धमकियां दी हैं और उन्होंने डिमांड की है कि ईरानियन पीपल जो है, ईरानी कौम जो है वो सरेंडर कर दे,
تو उनको धमकाना चाहिए जो धमकियों में आते हैं। ये ईरानी कौम, ईरानी माशरा ऐसा नहीं है, ईरानी लोग कि वो आपकी धमकियों में आए और आपकी धमकियों से डरें। ये दो टोक जो है आयतुल्लाह खामनाई ने उनको जवाब दिया, और इसके साथ ही ये अच्छा नहीं कि ईरानी कौम को सरेंडर करने का कहा जाए। ये भी उन्होंने बात कही कि ईरानी लोगों को सरेंडर करने का आप डिक्टेट नहीं कर सकते। उन्होंने मजीद कहा कि हम किसी के हमले का जवाब जो है वो इस तरीके से नहीं देंगे कि आप हमें बोलेंगे हम सरेंडर कर दें। अगर किसी ने हम पर हमला किया है तो हम सरेंडर नहीं करेंगे कि आपके कहने से हम सरेंडर कर दें। तो इस तरीके का उन्होंने दो टोक जो है वो आंसर किया है, और उन्होंने बोला है कि हमारी लॉजिक के बरखिलाफ है, हमारी लॉजिक में ये शामिल नहीं है कि एक नेशन, एक जो मुल्क है वो हम पर अटैक करे और हम जो है वो आगे से सरेंडर करें। ऐसा 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 कौम का जज्बा नहीं है, ऐसा जो है वो हमारी कौम, ईरानी कौम का अज़्म नहीं है। तो ये ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई साहब ने जो है वो अमेरिका को दो टोक बयान कर दिया है, और ये भी कहा गया है आयतुल्लाह खामनाई की जानिब से इस जंग में अगर अमेरिका घुसा 100% तो उसका जिम्मेदार 100% अमेरिका होगा, और इसकी जो तबाही होगी और इसकी जो हमें मुतासिर चीजें मिलेंगी वो हमारी सोच से भी बियॉन्ड होगी। तो ये उन्होंने एक चीज कही है, और उन्होंने बोला है कि नुकसान बहुत ज्यादा होगा, इसके जिम्मेदार जो है वो फिर अमेरिका होगा। मतलब उन्होंने दो टोक जो है वो बयान देकर चीजें अपनी तरफ से कह दी है कि भाई ये हमें अंदाजा था कि ये मिले हुए हैं, लेकिन ये अब खुलकर आ रहे हैं और डे बाय डे पता चल रहा है कि हाँ भाई ये साथ में मिले हुए और इनकी इन्वॉल्वमेंट है। हमें शक था, लेकिन अब हमें पूरा पता है। मतलब डे बाय डे चीजें जिस तरीके से अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो बात कर रहे हैं, उससे हमें पूरा अंदाजा हो गया कि ये अंदर से बिल्कुल मिले हुए हैं। तो ये चीजें जो है वो आयतुल्लाह खामनाई की जानिब से क्लियर की गई, और उन्होंने कहा कि अमेरिका जो है वो जिम्मेदार होगा किसी भी अगर उन्होंने इस चीज में दखल अंदाजी करने की कोशिश की तो ये सारा सिनेरियो था, ये सारी वो चीजें थी जो कि आयतुल्लाह खामनाई साहब और डोनाल्ड ट्रम्प यूएस के प्रेसिडेंट के दरमियान जो भी मतलब वर्बल चीज चल रही है, वर्बल जो है एक वॉर चल रही है, तो उस हवाले से मैंने आपको आगाह किया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी दुआ के साथ कि मुस्लिम उम्मा जो है वो इकट्ठी हो जाए और चीज़ें जो है वो हमारे हक में बेहतर हो, और चीज़ें जो है वो दुनिया के अमन और सुकून के लिए बेहतर हो। इसी दुआ के साथ मुझे वरीशा परवेज़ को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।